Okay. Good morning, Prathamesh. Good morning, Momita. Good morning, sir. Okay, I'm assuming Good morning, sir. good morning. Uh, there are only two people. Okay, we'll start anyway. Session is recording just to notify you guys, and इसके बाद सारे sessions record होंगे. ठीक है. अभी हम दो ही, I mean, there are only two students, so it's okay if you don't switch on the cameras. But next time when everyone is there, please switch on the cameras. I am not able to because for some reason वो no available camera found error दे रहा है. So Sir, I have some issues on my laptop's camera. That's okay, why can this be fixed by next week? I'll try. Yeah, thank you. Okay. ठीक है. We'll go through an overview of yesterday. अच्छा, anyway, yesterday I told that DOCSIS 3 protocol का there was some information to be gathered. एक assignment दिया था, किसने किया है? No, sir. Okay, No, sir. ठीक है. Good morning, Shubham. Good morning, sir. Okay. Shubham, have you researched DOCSIS 3 protocol? Yesterday I had given an assignment. Yes, no, anything? Okay. The assignment remains, and next Saturday it will be taken. I will put an official mail. Anyway. Shrecha. Good morning, Shrecha. Good morning, sir. Good morning. Okay. For everyone, I'm still giving you 1 week. Okay. If there are any issues with laptop camera, webcams, etc., please fix them. Next week onwards, we will have our camera switched on and we'll then proceed with the lecture. If anyone has prepared the DOCSIS 3 protocol assignment, you can go ahead. If it is not, we will have it next Saturday. Okay. Assuming that nobody has done, the assignment remains, and next Saturday we will go through it. But then next Saturday, I want it in a PPT format. Okay, everyone will everyone individually will prepare a PPT and present it in the next lecture on Saturday. I understand that it will be almost same, but still everyone has to prepare one. I'll share my screen. Just a minute. Before that, I'll just note down your attendance. Give me a minute.
Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Let us first go through yesterday's lecture in short summary. ठीक है. So for OSI model, we were yesterday going through OSI model, and okay, why is this not working? Okay, it's not working for some reason. Anyway, so we were going through the OSI model. OSI model has 7 layers. Okay. Application layer at the topmost, layer 7. Then we have the presentation layer. Okay. 6. Then we have the session layer, which is 5. We have the transportation layer, which is at 4. We have the network layer, which we have at 3. We have the data link layer at 2. And then we have the physical layer at 1. Now, these two are with perspective of modern data networking or networks are of not concern or not that important, although they are used, although sometimes they can come up, but for majority of the purposes or majority of understanding concepts, troubleshooting, usage, these are no longer there. Okay, so our main focus while going through this OSI model and going through layered architecture, going through data networking is going to be just application layer, transport layer, okay, and network layer, data link layer, and physical layer. Again, physical layer is something that would come a little bit different because generally there is not many people or job descriptions that deal with the physicality of networking, although it is a part of the job. So whenever someone is of the title network engineer or gets a job of network engineer, he might have to deal with layer 1, physical layer, the cables, but not necessarily all the time and generally very less. Okay, so complete main focus is these main focus. Okay, like we went yesterday. Okay, so just a minute. So these are two workstations. This is the wire, which we call, let's say, Ethernet. Okay, so this is physical layer. Okay, layer 1. It deals with cables. What kind of data, what kind of cable, material, cost, speed, quality of data, so and so. Okay, and इस पे डेटा कैसे भेजा जाए, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, कौन से रूल से, कौन से प्रोटोकॉल से, इट इज डिटरमाइंड बाय DLL, which is data link layer. Now, कहाँ भेजना है, इंटरनेट पे किसको भेजना है, कैसे भेजना है, इज डिसाइडेड वेयर ऑन नेटवर्क लेयर. ठीक है, which is third layer. Okay,
Then again, there are a set of protocols which get applied on the transport layer because it builds a session between the two कि अब इन दोनों के बीच में data transfer हो सकता है, होगा, करेंगे, and so forth. So which is the transport layer. Again, different kinds of protocols like TCP are applied on this, and then the data is transferred between two devices. On top sits the application layer. Okay, application layer enables us to transfer data in user readable format. मैंने example दिया था HTTP and HTTPS. Okay, so once the session is formed, once the handshake is done, once it is agreed कि हम दोनों अब data भेजने के लिए तैयार हैं, this is done through application layer so that data is transferred. HTTPS in readable format में data transfer हो सके इसीलिए. Now, the reason why session layer and presentation layer is not of concern here. Ab session layer is you will find it, but it is more on the information security side. ठीक है, वो networking से थोड़ा हट के information security side में गए, इसीलिए we'll keep it aside. So basically what it takes care of is your sessions. ठीक है, एक बार दोनों के बीच में connection हो गया, तो how long वो connection रहना चाहिए, okay, कौन से route के through जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, and all those sorts of things. Mostly it is for two purposes. One is how long the session should be, and the other is authentication. ठीक है, I am sure आपने देखा होगा जब भाई आप बैंक वाले पेज पे जाते हो, and if you're idle for a long time, if you don't do anything, your session gets ended. This happens on many other websites also. Okay, so who does that? That is a session layer job, session layer protocol. The reason it is of not networking purpose से, ठीक है, networking point of view से इतना कंसर्न नहीं है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन लेयर में ऑलरेडी सेशन बन चुका है. ठीक है, कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है, हमने डेटा ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन लेयर का अब कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता. इट शिफ्ट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि सेशन कितने देर तक रहना चाहिए, ऑथेंटिकेशन कौन कर रहा है, सही से यूजर है कि नहीं है, एक्सेट्रा. सो दैट गोज अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. नेटवर्किंग के अंडर वो काइंड ऑफ नहीं आता है. अब दूसरा था प्रेजेंटेशन लेयर. तो वो अब क्यों नहीं है, इज बिकॉज OSI मॉडल वाज मेड इन 1970. ठीक है, और उन दिनों में there were two types of systems. One was ASCII, which we still use today, and one was EBCDIC. Okay, I will just put it. Ek apna ASCII, and the other was EBCDIC. तो ये IBM वाले machines थे. ठीक है, session is recording. So these were IBM machines. अब क्या था, दोनों का फॉर्मेट अलग था. ठीक है, फॉर्मेट अलग का मतलब अभी ASCII में जो हम यूज करते हैं ASCII वैल्यूज. ठीक है, I don't remember them, but for example अगर हाई लिखना है, ठीक है, या फिर पेन कुछ लिखना है, तो उसका नंबर्स में कन्वर्जन होता है, hexadecimal numbers में. Does everyone know what hexadecimal numbers is? Yes, sir. ठीक है, तो it will be converted into hexadecimal numbers. I don't remember the conversions, but for example इसको 9A पकड़ो, take this as 8B and whatever. ठीक है, तो this was one format that was used by ASCII. Similarly, जो IBM के machines थे, वो एक दूसरा format use करते थे. ठीक है, now since there is a difference between the two presentations, ठीक है, ये जो यहाँ presentation की बात हो रही है, अब यहाँ पे हाई और पेन, ये दो शब्द जिस तरह प्रेजेंट हो रहे हैं in ASCII format, it is obviously different from the ones in IBM machines. तो अब
एक IBM मशीन और एक ASCII मशीन में डेटा ट्रांसफर करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इस चीज के लिए दे हैड इंट्रोड्यूस्ड प्रेजेंटेशन लेयर इन 1970 ताकि दोनों को एक ही फॉर्मेट में रख सके या फिर बना सके. ओके, so that data can be transferred from two different machines but on the same standard, same platform. That is why the presentation layer was there, so that data can be presented in a similar format, in the same format. But अब उस सब की जरूरत नहीं है because we no longer have those IBM के EBCDIC machines. We all are on ASCII. We all have the conversions of ASCII. All data is converted to ASCII format, which is in hexadecimal numbers, or and so on, so forth. ठीक है, उसके बाद सारा डेटा वैसे सेंड होता है. अब किसी की भी मशीन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, everything is automatically converted to one and sent ahead. All this is shifted to application layer. उसी में सब कुछ होता है because like I said, application layer is responsible for transferring data in a usable readable format. तो ये सारी चीजें उसमें होती है and presentation layer is no longer needed or focused. So for क्या कहते हैं, understanding purposes, you can say that session layer and presentation layer are considered to be a part of application layer. Excuse me. Okay, got it. Why we did not, go with those layers? All good? Any doubts? No, sir. Okay, No, sir. thank you. Okay. Next. So yeah, this is just a क्या कहते हैं, थोड़ा एकेडमिकली इंक्लाइंड वाला लेयर का फोटो की मैसेज फॉर्मेट, कोडिंग, ये वो. ओके, एजुकेशनल पर्पसेस. हियर आई हैव प्रेजेंटेड इट इन सच अ वे कि व्हाइट वाला इज एन एक्सप्लेनेशन पार्ट, कि आपको कभी किसी को बताना होगा, समझाना होगा, तो दिस इज हाउ आई वुड से. ओके, एंड द पर्पल पार्ट इज अगेन अ लिटिल बिट क्या कहते हैं, व्हाट यू वुड फाइंड ऑन द इंटरनेट, टेक्स्ट बुक्स या फिर scientifically, let's say. ठीक है, so physical layer is specifications for cables, whether that be wireless, copper, glass, etc., and it is responsible for moving individual bits from one device to the next device. So आप अगर किसी को समझा रहे हो तो I think it is a common English language में white part is good. अगर आप किसी interviewer, teacher, किसी academically inclined क्या कहते हैं, पर्सन और फोरम में बता रहे हो, तो आई थिंक इट इज बेटर यू रिप्रेजेंट और एक्सप्लेन इट एज responsible for moving individual bits from one device to the next. Similarly, data link layer provides the protocols and rules specifications for electronics, as well as how to move the messages across those links. Also known as moving frames from one hop to the next hop. Okay, network layer, ये hop क्या है, I will tell you. Next layer, sorry, network layer. It uses IP addressing and IP routing to connect to server, basically used to send messages over long distances across a network. It is responsible for delivery of individual packet from source to destination. Next, transport layer. It is responsible for setting up sessions between two devices using TCP. It has a handshake process and then builds the connection. Okay, responsible for process to process delivery. Session layer, again इसमें white part explanation part नहीं है because it is all moved up to the application layer. But जब आपको क्या कहते हैं, किसी क्विज, किसी इंटरव्यू, किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, you will put these layers and उस टाइम पे you can use these
wordings. Yeah. So session layer, it establishes, maintains, synchronizes, and terminates the interaction between sender and the receiver, takes care of syntax and semantics of information exchange between two communication systems. You see, takes care of syntax and semantics of the information exchange, जो मैंने अभी explain किया था. ये था पुराना 1970 का, जब दो टाइप्स थे, सिंटैक्सेस थे, सेमेंटिक्स थे और कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती थी. अब ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इस लेयर की जरूरत नहीं है. सेशन लेयर अभी भी है, बट वो थोड़ा एप्लीकेशन लेयर में मूव किया है, एंड उसका मेंटेनेंस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस एंड इंटरैक्शन, इट इज मूव टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ठीक है, उसके अंडर वो सब आता है नेटवर्किंग के पर्पसेस से. इट इज अ लिटिल बिट ऑफ लेस कंसर्न. Application layer, we need a way to transfer information that is in a usable format, like between a browser and a website. So the website is a document and the browser is an application that makes use of protocols to request and transfer info. All this happens in the application layer, responsible for providing services to the user. This is very basic. इससे ज़्यादा explanation तो यहाँ पे, but again, if somebody asks for a summary, you use this. Again, for better understanding, summary यहाँ पे है. You can go through it later. I will send you the PPT anyways. Now, encapsulation and the OSI model. Okay, OSI model के अंदर encapsulation. ठीक है, तो now slightly into the functioning of the OSI model. It can still go deeper and it can still go, क्या कहते हैं, a lot to learn, but हम एक level नीचे जाएंगे, deeper into it and see what encapsulation is. ठीक है, so अभी assume हमें, let's say you have to go to YouTube. ठीक है, YouTube करना है, and you are currently, so now when you are going to type https youtube.com, you are at application layer. ठीक है, now to go to a website, we are going to use protocol HTTP or HTTPS, but HTTP अब generally testing के लिए use होता है, so HTTPS is the common norm. So we are going to use this to transfer the website or data back to the workstation, like so that हम देख सकें उसको. So we are going to transfer that data, that page of website back to our workstation so that हम उसको देख सकें, use कर सकें. Okay. Now websites are generally quite large. ठीक है, so we need to be able to break that website into smaller chunks to successfully get it to the client. ठीक है, ये वर्डिंग समझा. एक वेबसाइट काफी बड़ी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारा फंक्शनैलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट एप्लीकेशन लेयर इज वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू चंक्स. एक छोटा छोटा करेंगे. फॉर एग्जांपल ये outlook.com है, तो मैं क्या करूंगा, ये लेफ्ट वाला जो मार्जिन है ना, ये अलग से भेजूंगा, ये बीच वाला पार्ट अलग से भेजूंगा, फिर ये राइट वाला पार्ट अलग से भेजूंगा. ठीक है, दैट इज हाउ आई विल ट्रांसफर डेटा, दैट इज हाउ आई विल गेट इट. तो हमें दिखते वक्त क्या दिखता है, एज सुन एज आई पुट outlook.com, इमीडिएटली पूरा का पूरा पेज आ जाता है, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, इट हैपेंस थ्रू ट्रांसफर ऑफ डेटा. ठीक है, बिट्स बाय बिट्स, चंक्स बाय चंक, थोड़ा थोड़ा करके वो एक सेकंड, 1.5 सेकंड में पूरा आपको आ जाता है, एक प्रेजेंट हो जाता है एज अ कंप्लीट वेबसाइट. ओके, नाउ ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई जो मैंने बोला अभी कैसे हो रहा है?
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा था यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब का एक पेज है, ऐसे दिखता है ना, यहाँ पे ये रहता है, होम रहता है, ट्रेंडिंग, वॉच हिस्ट्री, फिर यहाँ पे आपका फीड रहता है, एंड देन देयर इज समथिंग एल्स ऑन दी राइट साइड। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर में इसको डिवाइड कर लेंगे, like I said, you have to put it in chunks, you have to transfer the data in chunks. तो अब ये YouTube का पेज मुझे लाना है, मुझे मेरे लैपटॉप पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली फुल वेबसाइट तो आ नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। सो तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल पार्ट्स। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हमने इसको ब्रेक डाउन किया है 3 पार्ट्स में, एक वो अपना लेफ्ट वाला मार्जिन, एक अपना फीड वाला मार्जिन, और राइट में कुछ तो होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो हमारा पेलोड है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जाएगा अपना पहला चंक, चंक ऑफ डेटा, वेबसाइट का थोड़ा सा पार्ट, ओके। अब इसमें ये पेलोड में हमारा थोड़ा सा पार्ट जाएगा। फ्लैग्स सबसे पहले फिर मैं बताता हूँ, ये है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। Flags is some general information about what is happening. Sequence and acknowledgement is they keep a track of how much data has been sent and received, ठीक है। मतलब जब ये पहला वाला जाएगा तब सीक्वेंस तो क्या है कि सीक्वेंस में नंबर क्या है 1, फिर जब तुम्हारे लैपटॉप को मिलेगा तब एक्नॉलेजमेंट क्या होगा 1 कि भाई मुझे पहला वाला पार्ट मिल गया है। फिर सेकंड सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मुझे दूसरा वाला पार्ट मिल गया है, एंड सेम फॉर थर्ड, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Source port and destination port, I hope you guys know what ports are. ठीक है, हम वो भी पढ़ लेंगे बाद में। सो पोर्ट्स आप समझ लो कि आपका लैपटॉप है, एक 3 पिन प्लग आपके लैपटॉप में लगा हुआ है और एक 3 पिन प्लग लगा हुआ है यूट्यूब के पास, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर में। ये आपका 3 पिन प्लग है, ठीक है, और ये जा रहा है आपके लैपटॉप को, ऐसे समझ लो ना, ठीक है। तो ये क्यों है, ताकि कनेक्शन बन सके, ठीक है। फिर फ्लैग्स क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन रहता है, नॉट इन स्कोप, हम डीप में नहीं जाएंगे। लाइक आई सेड, जाने को तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, एंड वी कैन गो एज डीप एज वी वांट इनटू दिस राइट नाउ, नॉट ऑफ कंसर्न, ठीक है। सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है और उसका सीक्वेंस क्या है, हाउ मच डेटा हैज बीन सेंट एंड रिसीव्ड, और पेलोड में है अपनी वेबसाइट का पार्ट, चंक, ठीक है। इस सब को, ठीक है, और ये जो अपना अब है पार्ट है ना, इसको, ये फर्स्ट वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक पेलोड को, इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है। ये पार्ट है हेडर। हेडर क्या है, बस एक इंफॉर्मेशन है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, ठीक है। एक जनरल इंफॉर्मेशन रखता है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। आप इसको कंसिडर कर लो कि एनवेलप की तरह। आपका पेलोड वो आपका लेटर है जो आपने आपके मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड वाइफ जिसके लिए भी लिखा हो, वो लेटर आपका पेलोड है। अब आप उसको डालेंगे किसी एनवेलप में, क्योंकि आपको ये भी तो बताना है कि कहाँ डालना, किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या भेजना है। वो एनवेलप अपना ये पार्ट है, हेडर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एनवेलप को बोला गया है हेडर, दिस इज नथिंग बट दी एनवेलप, ठीक है। So what is this? This is this complete thing. Sorry. Now this is called a segment. ठीक है, इसको बोलते हैं segment. So a chunk of data with transport layer header. Sorry, my bad. Nothing, my bad. Sorry, we are not there at transport layer yet.
Okay, so yeah, so let me, sorry, I did a mistake. तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये एक्चुअली है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है. सॉरी, लेट मी फिक्स इट. I'll get this again. Okay. Let's go from the start. Sorry for the confusion. Okay. We are at application layer. एप्लीकेशन लेयर में मैंने टाइप किया youtube.com क्योंकि मुझे YouTube के पास जाना है. एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, YouTube के पेज को डिवाइड करेगा इसमें पार्ट्स में. लेफ्ट मार्जिन, ये अपना फीड, और ये राइट मार्जिन. नाउ दिस वर्क्स इन कंजंक्शन विद द दिस ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, अब ये बन गया है. नाउ द वेबसाइट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द वर्क स्टेशन. इसको अब वापस जाना है अपने वर्क स्टेशन लैपटॉप के पास. ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर से हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि इसको अब ट्रांसपोर्ट करना है. ये सब हो गया. इट इज टाइम टू ट्रांसपोर्ट इट. ओके, सो वी आर नाउ एट द fourth layer, which is the transport layer. Okay, and the figure that I showed you before was of transport layer. ठीक है, source port, destination port, flags, sequence number, acknowledgement number, and payload. तो हमारी वेबसाइट का जो फर्स्ट पार्ट है वो अब इस पेलोड में है. ठीक है, अगेन नाउ सॉरी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज लाइक अ प्लग, राइट, 3-pin प्लग. एक प्लग है आपके लैपटॉप में, दिस इज योर लैपटॉप, और एक प्लग है वेबसाइट के पास. ठीक है, सोर्स पोर्ट में आपके प्लग का इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन पोर्ट में YouTube के सर्वर के प्लग का इंफॉर्मेशन है. फ्लैग्स जनरल इंफॉर्मेशन, नॉट इन स्कोप. सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मच डेटा हैज बीन सेंट एंड रिसीव्ड. आपने पहला चंक ऑफ डेटा भेजा, सीक्वेंस विल बी 1, एक्नॉलेजमेंट विल 1. कब होगा, जब रिसीव होगा. जब आप फिर ये सेकंड पीस ऑफ डेटा भेजेंगे तो सीक्वेंस नंबर होगा 2, और जब आपको मिल जाएगा तो होगा 2. अनदर एग्जांपल, जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो एक फाइल सपोज 1 लाख बिट्स में डिवाइडेड है, राइट. तो सबका सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट उस हिसाब से होगा, सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर. और है पेलोड है अपना दिस चंक ऑफ डेटा. okay? ये अपनी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है. नाउ द एग्जाम्पल दैट आई वाज गिविंग यू इज लाइक अ सेंडिंग अ लेटर. तो ये पेलोड मतलब आपका लेटर है, और ये आपका एनवेलप है, उस लेटर का एनवेलप. ठीक है, इस एनवेलप को नेटवर्किंग टर्म्स में बोलते हैं हेडर. किस चीज का हेडर है ये आपके पेलोड का हेडर है. ठीक है, नाउ सॉरी, so this entire thing, okay, this entire thing is called a segment. Okay, ये है सेगमेंट. ठीक है, अगर टर्म्स में बोलूं, अ चंक ऑफ डेटा विद अ ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर. ठीक है, हम अभी है, सॉरी
ओके, हम अभी है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ये हमारा चंक ऑफ डेटा है, उस चंक ऑफ डेटा के साथ हेडर है, तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। अ चंक ऑफ डेटा विद अ ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, अ चंक ऑफ डेटा यानी पेलोड विद द ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, जो कि एसपी, डीपी, फ्लैग, सीक्वेंस, एक्नॉलेजमेंट है, उसके साथ इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस इस हेडर का नाम है टीसीपी हेडर। ठीक है, इस हेडर का नाम है टीसीपी हेडर। I will write it down for you. एप्लीकेशन लेयर में ब्रेकिंग ऑफ ये किया, फिर इसमें होता है ठीक है, ओके। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, लेकिन आपको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, बाकी लोग, सिर्फ एक पर्सन हैज आंसर्ड मी। Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके। आई अभी तक आई एम अज्यूमिंग समझ में आया। सो वी हम लोग एप्लीकेशन में हमने डेटा को चंक्स में डिवाइड किया, फिर हम ट्रांसपोर्ट में आए और उसमें एक हेडर ऐड किया। कौन सा हेडर ऐड किया? टीसीपी हेडर ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में और हमें उसको भेजना है अब कहीं और, तो हमने उस लेटर पे एक एनवेलप डाल दिया। So this info allows the client and the server to set up a session and keep a track of what data has been sent and received. वो sent and received कहाँ पे? वो sequence और इसमें, और addresses वो port पे है। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब हमें क्या करना है? अब ये तो कर लिया, अब हमें भेजना है कहीं पे। ठीक है, हमने एनवेलप लगा दिया, एनवेलप में आप क्या डालोगे? एड्रेसेस डालोगे, राइट? तो अब हम जाएंगे लेयर 3 में, विच इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होगा? इसको कहाँ भेजना है ये डिसाइड होगा। ठीक है, नाउ वी नीड टू नो वेयर टू सेंड द डेटा, और उसके लिए क्या लगेगा अपने को? आईपी एड्रेस। ओके, सो नाउ वी नीड सोर्स आईपी, destination IP, TTL, others, और ये पेलोड। ठीक है, अब ये जो अपना पेलोड है ना, ये पूरा सेगमेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? आर एंटायर सेगमेंट इज नाउ द पेलोड। ओके, सब कुछ एसपीडीपी, फ्लैग, सीक्वेंस, एक्नॉलेजमेंट, फ्लैग, और वो जो पहले का एक्चुअल चंक ऑफ डेटा है, मतलब अपनी वेबसाइट का लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, वो सब अब पेलोड में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो नेटवर्क लेयर है उसके पेलोड में ये ऊपर वाली अपनी सेगमेंट है। सो दिस पेलोड इज नथिंग बट सेगमेंट। ठीक है, अब इसको हमने ऐड किया हुआ है हेडर, इसको एक और एनवेलप में डाला है, ऐसे समझ लो। दिस इज ऑल्सो अ हेडर। कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जैसे मैंने कहा था
आईपी इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स जिससे कि इंटरनेट पे या फिर किसी नेटवर्क में डिवाइसेस एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम और आप एक इंसान को नाम से जानते हैं, वैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आईपी के नाम से जानता है, आईपी से पहचानता है। सो हम हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। जैसे हम लेटर में लिखते हैं फ्रॉम एंड टू, उसी तरह से दिस इज फ्रॉम एंड टू। ठीक है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फ्रॉम एंड टू। उसके बाद है टीटीएल, टाइम टू लिव। तो दिस टेल्स यू हाउ फार दिस पैकेट हैज टू ट्रेवल एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसका विल गो इनटू इट अ लिटिल डीपर, लेकिन आप समझ लो कि आपके घर से फिर वो जाएगा राउटर मॉडेम, ठीक है, फिर वहां से इंटरनेट में किसी सर्वर के पास, फिर किसी सर्वर के पास, फिर किसी सर्वर के पास, फिर किसी सर्वर के पास, और फिर पहुंचेगा यूट्यूब में। ठीक है, ये पहले आपके घर से जाता है क्या कहते हैं राउटर, फिर मॉडेम इंटरनेट में गया, फिर मैं पुणे में बैठा हूं तो पुणे का सर्वर, फिर वो और दूर जाएगा जैसे महाराष्ट्र का सर्वर, फिर दूर जाएगा जैसे इंडिया का सर्वर, फिर और दूर जाएगा जैसे यूएसए का सर्वर, फिर उसके बाद जाएगा कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया के बाद जाएगा यूट्यूब के पास। ठीक है, तो इसने ये जो तो इसको बोलते हैं हॉप्स। ठीक है, उसने कितना हॉप लिया है, और ये टीटीएल बताता है कि कितना मैक्सिमम हॉप लेना चाहिए या ले सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये एक हॉप हुआ, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, तो यहाँ पे टीटीएल होगा 6, मतलब द मैक्सिमम हॉप्स फॉर दिस पैकेट इज 6। तो टाइम टू लिव, ठीक है, टाइम, ये पैकेट कब तक जिंदा रहेगा, जब तक 6 हॉप्स नहीं होते। चलो मान लो कहीं पे सपोज ये वाला सर्वर ही चला गया, या फिर ये वाला सर्वर बंद पड़ गया है, डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो कितने हॉप्स हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तब पैकेट तब तक रहेगा और ये ढूंढता रहेगा। लेकिन सपोज जैसे कि मैंने कहा कैलिफोर्निया का एक और सर्वर ऐड हो गया। ठीक है, तो एक और सर्वर ऐड हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एज सून एज 7 होता है ये पैकेट चला जाएगा, मतलब अपनी जो लेफ्ट मार्जिन वाला डेटा था वो गायब हो जाएगा, वो हमें कभी मिलेगा ही नहीं। हमें फिर से टाइप करना पड़ेगा, या फिर वेबसाइट रिफ्रेश करनी पड़ेगी, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें अपनी साइट मिले। ओके, अभी के लिए ये क्लियर है, इतना टीटीएल क्या होता है, इसका बाद में लेंगे फिर से। Yes, sir. ओके, अदर, अगेन अदर्स में अदर इंफॉर्मेशन होती है एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। आप मान लो कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे लोकेशन वगैरह, whatever you want to put in it. अब इसको बोलते हैं चंक, सॉरी इसको बोलते हैं पैकेट। ठीक है, ये है पैकेट। पैकेट क्या है, अ चंक ऑफ डेटा, ये अपना चंक ऑफ डेटा जो पेलोड में है, विद अ नेटवर्क लेयर हेडर। हम कौन से लेयर में, लेयर 3 में है हम लोग अभी। ठीक है, लेयर 3 में, इसीलिए ये हमारा हेडर है, और इस हेडर को क्या बोलेंगे, IP header. Okay, this is the IP header. A chunk of data, ये अपना chunk of data with a network layer header is called a packet. तो ये पूरी चीज हो गई पैकेट, और इस हेडर को, सिर्फ इस हेडर वाले पार्ट को स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, आईपी हेडर बोलते हैं इन नेटवर्क लेयर। यही हेडर जब यहाँ पे था ऊपर जिसमें ये डिफरेंट वाली चीजें थी, तब उसको क्या बोल रहे थे हम, टीसीपी हेडर। ठीक है, अब वो बनता है आईपी हेडर। ये पूरा चीज पहले था सेगमेंट, अब बना है पैकेट। ठीक है, so network layer is going to allow us to know what two endpoints in the internet or any network we are going to send this info to. कैसे पता चलेगा, ये आईपी से पता चलेगा। नेटवर्क लेयर वो लेयर है जहां पे पता चलता है कि ये लेटर हमें कहाँ भेजना है इंटरनेट पे। उसको पता चलेगा कि इस कंप्यूटर से कहाँ दुनिया में, कहाँ इस लेटर को, इस डेटा को मुझे भेजना है, विच इज
डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आते हैं अगली लेयर पे, विच इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो अभी तक हम आए हैं चंक ऑफ डेटा से, अपना वेबसाइट जो था, ठीक है, उसको हमने डाला सेगमेंट में, और सेगमेंट को हमने बनाया पैकेट। ठीक है, सेगमेंट पे हमने लगाया टीसीपी हेडर और पैकेट पे हमने लगाया आईपी हेडर। अब हम आए हैं डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, अब इसमें है अपना सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे अजम्पशन है कि आप सबको पोर्ट्स, आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस का नॉलेज है, आपको पता है कि ये चीजें क्या है। एम आई करेक्ट और इज देयर एनी डाउट? पूछ लो, बाद में कभी फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। Sir, no Awesome. doubts. Okay, Prathamesh is good. Others? No, sir. Okay. Momita and Shrecha? No, sir. Shrecha, are you there? Okay. So Shrecha is not there. ठीक है, अब हमारा जो अब पेलोड क्या होगा बताओ? इतना मैंने Packet. या Packet. यस, पैकेट। ठीक है, अब अपना पेलोड होगा पैकेट, ये पूरा का पूरा इसमें जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे जा रहा था? ठीक है, हमारा चंक ऑफ डेटा गया सेगमेंट में, फिर वो पूरा सेगमेंट गया पैकेट में। ठीक है, और अब वो पूरा पैकेट जा रहा है अपने इस डेटा लिंक के पेलोड में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये ऐसा अगर पेलोड होगा तो ये पहला वाला पार्ट, फिर उसमें ये दूसरा वाला पार्ट, फिर ये तीसरा वाला पार्ट, और अभी के लेयर का पेलोड। ठीक है, ये सब इस पेलोड में घुसते जा रहा है। ओके, नाउ source MAC address, destination MAC address, layer 3 protocol and payload. अगेन लेयर 3 प्रोटोकॉल मतलब अपना नेटवर्क लेयर का कोई प्रोटोकॉल जो अप्लाइड होगा और उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अगेन एट दिस पॉइंट नॉट इन स्कोप, अगर आप खुद देखना चाहते हो तो जा सकते हो। लाइक आई सेड, इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग और हो सकता है, यू कैन गो एज फार एज इम्प्लीमेंटिंग योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, वो लेवल ऑफ इसकी क्या कहते हैं, रिसर्च स्टडी या फिर ये हो सकता है, बट अभी के लिए वी आर गुड। ठीक है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड विथ कि कैसे होता है रादर देन उसमें क्या होता है। ओके, वी आर मोर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस देन द डेटा इटसेल्फ। तो सोर्स डेस्टिनेशन, सॉरी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, लेयर 3 प्रोटोकॉल और हमारा पेलोड। अब हमारा पेलोड वाज द, जो पहले का सब कुछ था वो सब अब इस पेलोड में। तो अब इस पेलोड में क्या क्या चीजें होंगी बताओ? what things does this payload have? ठीक है, सो आर पेलोड हैज वेबसाइट, वेबसाइट का जो एक पार्ट था वो है, हमारे पास सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट्स है, हमारे पास सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, हमारे पास वो कितना दूर तक जा सकता है, कितना देर जिंदा रह सकता है वो है, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं कि कितना भेजा है कितना नहीं भेजा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं हमारे पास, राइट? और
जो मैक एड्रेसेस थी वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अब हमें फॉर श्योर पता है, हमें एग्जैक्ट सर्वर, एग्जैक्ट मशीन, एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि मुझे ये लेटर कहाँ भेजना है, अप टू फ्लैट नंबर। जैसे आप एक लेटर पे लिखते हो कि एक फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, रोड, ये वो लिखते हो। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पोर्ट्स हैं, आईपीज हैं, मैक एड्रेसेस हैं, हमारे पास ये भी पता है कि कितना दूर जाना है हमको। ठीक है, किसी मुंबई से पुणे जाना है, मुंबई से नागपुर जाना है, कितना दूर जाना है। ठीक है, हमने कितना सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट भी है कि एक लेटर भेजा, टोटल 3 लेटर है, लेकिन उसमें से ये पहला वाला है और पहला मिल जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, नाउ वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। नाउ अगेन इन दिस पोर्शन आल्सो, दिस इज हेडर। ठीक है, ये अपना पेलोड जो कि पहले का था, विच इज पैकेट। ठीक है, नाउ a chunk of data with a data link layer header is called a frame. ये पूरी चीज होती है फ्रेम। okay, this is called a frame. मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्या, लेट मी सी। ओके, ठीक है, वर्क लेयर, chunk of data with network layer header is called packet. In this case, header is called IP header. इसमें मैंने शायद लिखा नहीं है, TCP header, राइट, IP header. okay, data link, chunk of data with data link layer header is called frame. In this case, header is called header. ठीक, okay, and in this particular, क्या कहते हैं, this particular header is called ethernet header. ठीक है, और ये पूरी चीज को बोलेंगे हम फ्रेम। ठीक है, तो अपना पेलोड और ईथरनेट हेडर टुगेदर मेक अ फ्रेम। तो हम कहाँ से आए, हम आए चंक ऑफ डेटा, अपनी वेबसाइट, वेबसाइट को बनाया हमने सेगमेंट में, सेगमेंट से बना पैकेट, पैकेट से बनी फ्रेम, और अब फ्रेम से जाएगा ये वायर के थ्रू जहां भी इसको जाना है। ठीक है, अब ये फ्रेम से बनेगा क्या, सिग्नल्स, इट विल बी वंस एंड जीरोस। ठीक है, ये फ्रेम जो है, ये डेटा जो है, जो कुछ भी है, सब कुछ, ये एड्रेस वड्रेस सब कुछ, ये बनेगा वंस एंड जीरोस, 0 0 0 1 0 0 0, ऐसा बनेगा। ठीक है, और जब वायर के थ्रू जब जाएगा तब क्या बनेगा, सिग्नल्स बनेगा। ये है 1, ये है -1, बट अगर डीसी, वो करंट के हिसाब से, एसी डीसी करंट, उसके हिसाब से 0। इस तरह हम भेजेंगे अपना डेटा, इस तरह डेटा जाएगा, वहां वेबसाइट के पास पहुंचेगा, और हमारे पास जब आएगा तब उल्टा शुरू होगा। पहले हम ये फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर 1, फिजिकल लेयर, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, लेटर एनवेलप को खोलेंगे, फिर एक और एनवेलप को खोलेंगे, ऐसे खोलते खोलते हमें अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, क्लियर सो फार? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Good. sir. Good. अब इसमें बस एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि ईथरनेट वाला जो प्रोटोकॉल या फिर जो हेडर्स है वो तब तक लगता है जब तक हम केबल मॉडेम पे पहुंचते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर टू राउटर, राउटर टू केबल मॉडेम, ईथरनेट, यही ये जो अपनी फ्रेम है, ये जो हेडर है यही होगा। ठीक है, उस पे ईथरनेट प्रोटोकॉल लगेंगे, ईथरनेट हेडर लगेगा। बट जब हम केबल मॉडेम से लेके इंटरनेट भेज रहे होंगे ना, तब एक डिफरेंट फ्रेम लगती है, मतलब एक अलग हेडर लगेगा। ठीक है, अलग इंफॉर्मेशन होगी। ठीक, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, एंड अगेन नॉट इन स्कोप, बट प्रोसेस सेम ही है। कुछ टाइप की इंफॉर्मेशन लग जाएगी आगे, ठीक है, जो अपने फ्रेम को अपने डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ओके, सो व्हाट इट डज इज इट टेक्स आवर पेलोड, ये जो अपना पेलोड है, आउट ऑफ द एनवेलप एंड एक नया एनवेलप डाल देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ वाइट एनवेलप, वो निकालेगा रेड एनवेलप डालेगा एंड इट विल पुट इट फॉरवर्ड ऑन द इंटरनेट सो दैट इट रीचेस द डेस्टिनेशन। ओके, ये प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस एनवेलप अलग लगेगा, हेडर अलग लगेगा। ओके, and another thing is when working with ethernet, ठीक है, ethernet especially वो वायर वगैरह जब लगाते हैं हम, the data part can have something called a maximum transmission unit for ethernet or MTU। ठीक है, मतलब अपना ये जो ये था यहाँ पे, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे है और अपना ये फ्रेम है, उस फ्रेम में एक चीज होती है कॉल्ड MTU विच इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, ये कहाँ लगती है, अपने ईथरनेट केबल जब हम ये कर रहे होते हैं ना, से डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट ब्राउज, तब लगती है। ठीक है, तो याद पहले वाले एग्जांपल में जब बताया था कि DLL नेटवर्क प्रोटोकॉल्स अप्लाई करता है, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो उसने अप्लाई किया हुआ है उस केबल पे जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सेंस बन रहा है इस चीज का नाउ, मतलब समझ में आ रहा है पिक्चर कि कैसे एक डेटा लिंक लेयर, जो अपन वो ब्लू वायर ऑरेंज वायर जो 8 पिन वाली रहती है ईथरनेट यूज करते हैं, उस पे एक रूल लगता है डेटा लिंक लेयर का, जो कि होता है MTU विच इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो होता है 1500 बाइट्स का। मतलब जो ओरिजिनल अपनी जो ये थी वेबसाइट जो हम ट्रांसफर कर रहे थे, जिसको हमने ब्रेकअप किया था चंक्स में, जो एक लेफ्ट मार्जिन था फर्स्ट, ये होना चाहिए मैक्सिमम 1500 बाइट्स का, वो फिर ही ट्रांसफर होगा। तो जैसे कि ये अब फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट मार्जिन, ये सेंटर और ये राइट, तो मेरा जो ये लेफ्ट पार्ट है यहाँ से, इट शुड बी 1500 बाइट्स सो दैट इट गेट्स ट्रांसफर्ड वाया ईथरनेट। ठीक है, वहां से मेरे लैपटॉप पे, या फिर लैपटॉप से अगर मुझे कुछ यूट्यूब पे भेजना होगा, लाइक अपलोडिंग अ वीडियो, अगर मुझे ये अपनी टीम्स मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड करनी होगी, तो द डेटा शुड बी मैक्सिमम 1500। वो चंक जो मैंने सेपरेट किया हुआ है, इट शुड बी ऑफ 1500 बाइट्स। नाउ अब जब ये घर वाले कनेक्शंस होते हैं या नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उसमें 1500 बाइट्स इज टिपिकल एंड मैक्सिमम। कुछ केसेस में दिस कैन बी इंक्रीज्ड, बट द जो कुछ केसेस हैं वो होती हैं एक डेटा सेंटर में, इन अ डेटा सेंटर फॉर सम एप्लीकेशंस। ये अपनी घर वाली कनेक्शंस के लिए नहीं होते हैं, ये अपने घर वाले जो नेटवर्किंग होती है, ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है, these are not for those। अपने घर वाले कनेक्शंस के लिए मैक्सिमम ट्रांसफरेबल थ्रू ईथरनेट होता है 1500 बाइट्स, लेकिन डेटा सेंटर में थोड़ा ज्यादा होता है। आई होप यू गाइस नो व्हाट डेटा सेंटर इज। Yes, sir. ठीक, so just give me a minute, I'm getting a call।
sorry. Okay. ठीक है. So this was encapsulation with OSI model. OSI model के पहले हमने layers देखे, फिर हमने देखा what is encapsulation. Encapsulation is nothing but वो जो headers हम add करते जा रहे थे, that is encapsulation, and that is the process. ठीक है. अब this is another deeper level of understanding is जिसमें हम bits and bytes के through जाते हैं कि कितने वो जो header था, for example एक segment, suppose अगर 48 bits bytes का होगा या जो भी होगा 48 120 जो भी होगा, तो उसमें से पहला पार्ट कितना, दूसरा पार्ट कितना, उसमें जो अदर इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती होनी चाहिए. दिस इज अनदर लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसके और एक नीचे डीपर अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की उसमें कैसे होता है, क्या होता है. ओके, दिस इज अगेन आपके पर्सनल यूज, पर्सनल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है. आपको अगर you want to research more, you can go, but from the subject perspective, I think we are good with this much of understanding, and I hope you guys have understood. Okay, next. Layered architecture. So layered architecture in computer networks refers to the organization of various network protocols into layers, each of which has a specific function. मतलब हमने जो OSI मॉडल देखा उसमें जो अलग अलग लेवल पे प्रोटोकॉल्स लग रहे थे, that is nothing but layered architecture. This architectural approach provides a modular framework that separates the concerns and responsibilities within the network, making it easier to design, implement, troubleshoot, and maintain the network. ठीक है. So for example, HTTPS एक protocol which was at the topmost layer, then TCP protocol which was at the transport layer, then we had the Ethernet protocol which was at the data link layer. There is IP protocol which is at the network layer. Okay, and then we have the physical में protocol मतलब वही कि कौन सी केबल क्या केबल so and so. Okay, this is nothing but layered architecture. So why the layered architecture? What are its key features? First is separation of concerns. Each layer is responsible for a specific set of tasks and communicates with the layers directly above and below it. This simplifies development because changes in one layer typically don't affect the other. Okay, plain and simple. हर एक लेयर का टास्क है और एक लेयर का टास्क दूसरे लेयर के चेंजेस इन वन लेयर डू नॉट अफेक्ट द अदर. दे वर्क टुगेदर बट द चेंजेस डू नॉट अफेक्ट. ओके, देन modularity. The network functions are divided into distinct modules, making it easier to develop, replace or update individual modules without impacting others. अब मान लो कल को आपने कोई रिसर्च कर ली, okay, and you decided कि I am going to introduce a new protocol, a new law जिसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया एंड आपको उसको डालना है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो आप वो कर सकते हो विदाउट affecting the other layers, plain and simple. Okay, this modularity also allows for interoperability, meaning that systems from different vendors can work together as long as they adhere to the same protocols at each layer. अब different vendors कौन है अपना OS platforms, for example विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स, मिंट, सेंटोस, रेड हैट वगैरह वगैरह जो भी है. ठीक है, रेल, RHEL, रेल वाला लिनक्स का डेरिवेटिव. तो ये सब डिफरेंट क्या कहते हैं वेंडर्स हैं. ठीक है, ये हमें डिफरेंट OS देते हैं, डिफरेंट कंपनी देते हैं, iOS, एंड्रॉइड, ये वो जो भी है. बट this can still work because they adhere to the same protocols at each layer. TCP protocol
यूनिक्स में भी लगता है, विंडोज में भी लगता है, आप जो आपका फोन यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन, एप्पल हो, एंड्रॉइड हो, उस सब में लगता है. नाउ सिंस एवरीवन अग्रीज ऑन दीस प्रोटोकॉल्स, वो द थिंग्स वर्क स्मूथली, और इंटरनेट जैसे आपको पता है चलता है, चल रहा है. सो ओके, दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी, कि आप एक चीज को उठाओ, उसमें चेंजेस करो और फिर से डाल दो, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, एक ब्लॉक को निकालो, उसमें चेंज करो, डालो, ये करो, वो करो, जो भी है, ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको चेंजेस कर सकते हो. Then encapsulation. Data is passed down the layers of source device, with each layer adding its own specific information to the data before passing it to the next lower layers. At the destination, these headers are removed layer by layer as the data is passed up the layers. Encapsulation जो हमने अभी देखा, that is nothing but encapsulation. ठीक है, एंड वो जो बोल रहा है द सेकेंड पॉइंट कि at the destination these headers are removed layer by layer as the data is passed up the layers. इसका मतलब ये जो प्रोसेस हुई थी टॉप टू बॉटम, ये एक जगह पे होगी, दूसरे जगह पे उल्टा ही होगी, राइट, बिकॉज इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट. जैसे कि यहाँ पे ये एक मशीन, ये दूसरा मशीन, यहाँ से जब ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पे ऑब्वियसली उल्टा होगा, राइट. पहले वो वंस एंड जीरोस को पहचानेगा, फिर उसको डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, और ऐसे ऊपर आते आते करेगा. सो द अप्रोच इज रिवर्स. तो इस केस में हम जैसे एनवेलप्स ऐड करते जा रहे हैं, इस केस में यहाँ पे वो एनवेलप्स खोलते जाएगा. ओके, दैट इज व्हाट द सेकंड सेंटेंस इज, कि the headers are removed layer by layer and the data is passed up the layers. Standardization. Layers follow standardized protocols, ensuring that different systems and networks can communicate effectively irrespective of the underlying hardware or software. Again, standardization in the sense कि सब एक ही फॉर्मेट पे, जैसे कि वो ASCII वाला एग्जांपल मैंने बताया था, अब सारे सिस्टम्स वही फॉर्मेट यूज करते हैं, वही चीज यूज करते हैं. Okay, irrespective of the hardware or software. That is why we no longer need the presentation layer. That is why बाकी सारे जो layers है वो अपने आप एक साथ काम करते हैं. That is why different protocols उस particular layer पे लग के काम smoothly चल सकता है. ठीक है, so irrespective of कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो हार्डवेयर वाइज, और कौन सा OS यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर वाइज, doesn't matter, because everything is standardized, the protocols also as well as the layers. Flexibility and scalability. New technologies can be integrated into existing networks by making changes at relevant layers without needing to redesign the entire system. Networks can scale more easily by adding or upgrading individual layers. जैसे कि मैंने कहा था कि आप अगर कल को कुछ रिसर्च करके कोई नई चीज लाते हो, तो आप इस OSI मॉडल में उसको डाल सकते हो, आप उसको स्केल भी कर सकते हो और उसको फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल अभी का जो हो रहा है या कर सकते हैं चेंज? मैं हिंट दे देता हूं, इट इज रिलेटेड टू IP एड्रेस. नेटवर्क लेयर में जो IP एड्रेसेस यूज होते हैं, जो लगते हैं, वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पे उस मॉड्यूल में चेंज हो रहे हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी का उपयोग हो रहा है उस लेयर में. क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें? इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट आर वी पुटिंग देयर? Sir, we are using IPv6 instead of IPv4. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो मॉडल जब बना था और उस टाइम पे हम यूज कर रहे थे IPv4, अब हम लोग यूज करने लगे हैं IPv6. नॉट अभी, इट इज स्टिल कि मतलब धीरे धीरे कुछ कुछ डिवाइसेस को, कुछ कुछ इसको IPv6 मिलता है. जनरली IPv6 डेटा सेंटर्स या जो क्लाउड वाले डिवाइसेस होते हैं उनको मिल रहे हैं. अभी भी जो फिजिकल है उनको IPv4 मिल रहा है. जैसे मैंने कल दिखाया था, मेरा प्राइवेट भी IPv4 है और मेरा पब्लिक भी IPv4 है. ठीक है, सो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी या फिर नया कंसेप्ट लाया था IPv6, इसको भी we have to fit it, right? We have to fit it in the OSI model. तो because of this, तो OSI मॉडल का क्या आर्किटेक्चर है? लेयर्ड आर्किटेक्चर है, और उसके इन सब की फीचर्स की वजह से उसके
मॉड्यूलैरिटी की वजह से, उसके सेपरेशन ऑफ कंसर्न इस फीचर के वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन फीचर की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के फीचर की वजह से वी आर एबल टू implement IPv6 okay in network layer instead of IPv4, or they both work together, both are possible. अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, आपको दोनों एक साथ काम करने चाहिए तो आप कर सकते हो। आप अभी भी IPv4 से लेके IPv6 वाले एड्रेस पे डेटा भेज सकते हैं। The communication is still possible, so you can either replace it or you can make them work together. That is the key, क्या कहते हैं, key features of this layered architecture of this OSI model. That's how everything fits together perfectly. Any doubts? Anything that we need to go through again? Okay. No, sir. Thank you. I'm assuming since किसी ने बोला नहीं है, सबको समझ में आ गया है। एक ऑब्जर्वेशन है कि प्लीज आप थोड़ा सा भी अगर नहीं पता हो तो बता देना। द प्रॉब्लम कम्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है? जब क्वेश्चनिंग आती है, पीपल जनरली गो लिटिल बिट ब्लैंक या फिर कुछ और ही लिख देते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि होगा तो बता देना। आपको अगर क्या कहते हैं कॉल में पूछने से प्रॉब्लम है तो आप अलग से मेल भेज के भी पूछ सकते हैं, ठीक है? I'll try my best. जनरली मेल पे इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, बट विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.